What is literature review? How can we define literature review? Before defining literature review and the importance of literature review in any research process, I want to tell you that the section of literature review or this component of literature review in any research process is of greatest importance, because without literature review, without understanding all the researches, all it means that all those researches which are somehow relevant or related to the topic of our interest, we cannot understand our topic properly. So for better understanding and for best understanding of our topic which we have selected as a research topic, as a research problem in our study, literature review becomes very much necessary for the proper understanding and the way that now how we have to do that literature, how we have to carry that research. Okay, so now what is the definition of a literature review? लिटरेचर रिव्यू जो है इसको ये कोई एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस इसके ये है कि जाहिर है स्टेप्स होते हैं, वो हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करने होंगे। लेकिन उससे पहले कि लिटरेचर रिव्यू जो है ये क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर को। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर मतलब आपके पास जो टॉपिक है, जो हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, उसके ऊपर जो पहले से उससे रेलिवेंट जो रिसर्चेज हैं वो की जाती हैं, तो वो जो जितनी भी रेलिवेंट रिसर्चेज हैं उनकी हम क्या करते हैं, हम उनको रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब ये है कि हम उनको स्टडी करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनका एक समरी लेते हैं, कंप्रीहेंसिव जो समरी होती है किसके ऊपर, उस टॉपिक के लिए जो कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर पहले से किस तरह से वो रिसर्च जो है वो की हुई है। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या होता है, ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह से सर्वे रिसर्च होती है ना, ये इस तरह से सर्वे ऑफ द आर्टिकल्स होता है। ये जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, या जो दूसरे सोर्सेज हैं रिलेवेंट, जो कि हमारे पर्टिकुलर एरिया ऑफ द रिसर्च से रिलेट करते हैं, उनको हम सर्वे करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको रीड आउट करेंगे। तो उससे होगा क्या कि इसको कहा जाएगा, ये पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। कि आपने जब एक दफा सिलेक्ट कर लिया है ना टॉपिक ऑफ द रिसर्च, तो उसके फर्दर क्लियरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम उससे रेलिवेंट जितनी भी रिसर्चेज हम कर सकते हैं वो हम सर्च आउट करते हैं, और फिर उनकी एक कंप्रीहेंसिव समरी बनाते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती है कि हम अपने जो प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, सो लिटरेचर रिव्यू इज बेसिकली a comprehensive summary of the previous research on the topic which we have selected. And literature review is a survey of scholarly articles, survey of research articles, books and other sources relevant to the particular area of our research. When we conduct research, during the process of conducting research, it becomes essential that we include the literature review section or the component of the literature review in our research process. This is a survey section basically, where the researcher has to include scholarly sources such as these, like journals, like books, like literature research articles that cover the topic under study, like what the topic of your research is, what is the your research problem you are interested in, or you are you want to do the research on that particular topic. What is the first important step of that whole process of a research? It is to survey, to carry out the survey of the literature. Literature means journals, literature means research journal, literature means the books which provide a different kind of information in the form of theories or in the form of other chapters on the topic of our interest. So this section provides an overview of the concepts and the findings that relate to the research problem. इसमें होता क्या है, अगर हम एक दफ़ा इसको समझ गए कि हम लिटरेचर रिव्यू, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आप पेरेंटल एटीट्यूड्स के ऊपर स्टडी करें, या जो है वो कोरोना वायरस के जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करें। हम ये अगर फाइंड आउट करना चाहें कि ये किस तरह से जो है वो डिप्रेशन को इंक्रीज किया है या इससे एंजाइटी रिलेट कर रही है, उसकी वो रिजल्ट हुई है, तो हम क्या करेंगे उसके, ये हमारा अगर एक टॉपिक हो गया ना, तो हम क्या करेंगे
उसके ऊपर जो रिसर्चेस पहले से की गई हैं उन रिसर्चेस को भली वो बुक्स के फॉर्म में हो, भली वो किसी आर्टिकल के फॉर्म में हो जो न्यूज़पेपर में हो, भली वो इस पर हो, तो वो हमें एक इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफी जैसे काम में वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर हो तो हमारे पास भली बुक्स हो, हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स हो, हमारे पास स्कॉलरी जर्नल्स हो, जर्नल्स का में रिसर्च आर्टिकल्स ही होते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो वाले आर्टिकल्स हम सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे टॉपिक से, लेकिन एक क्या मतलब हम एक फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस तो हमने कह दिया ना, हमने कोविड-19 की बात की, लेकिन अब क्या होगा कि उसके ज़ाहिर वेरियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट की करता है, ये भी हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकली कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है कि उसने सोशल जो है वो किस तरह के डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, किस तरह से सोशल लाइफ को जो है वो स्टॉप किया है, रोका है, या उसके ऊपर इसके क्या इफेक्ट हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, देखिए एक ही कोरोना वायरस है लेकिन उससे फिर क्या होता है, अलग अलग चीजें जो है हमारे सामने आती हैं। तो जो हमारा टॉपिक होगा ना, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये किस तरह से डिप्रेशन जो है उसकी रेट से रेलिवेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिप्रेशन ही के साथ में रिलेट करते हुए जितनी भी रिसर्चेज हैं हम उनको स्टडी करेंगे। जब हम उनको स्टडी करेंगे तो हमें क्या होगा, क्लियरिफिकेशन हो जाएगी, हम क्लियर हो जाएंगे कि हमने जो टॉपिक लिया हुआ है उसके ऊपर क्या रिसर्चेज हुई हैं, और उन सारे रिसर्चेज को हम समझ के अंडरस्टैंड करते हुए और जो है वो देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये प्रोवाइड करेगा एक ओवरव्यू ऑफ द कंसेप्ट्स एंड फाइंडिंग्स दैट रिलेट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। जो मैं अभी हम जो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे रिसर्च का, उसके कंसेप्ट्स के साथ में जो कंसेप्ट्स होंगे उनको ये जो है हेल्प आउट करेगा, उनका ओवरव्यू देगा, उनको फर्दर एक्सप्लेनेशन देगा हमें, ठीक है। When coming up with a literature review, do not focus on summarizing the sources. Like जब हम literature review करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि this is not basically summarizing of the sources. We do not only summarize the sources of the literature review, rather we should interpret them. हम उन्हें interpret करते हैं, हम उन्हें understand करते हैं। What we do when we coming up with the literature review, हमें क्या करना होता है, हम सिर्फ फोकस नहीं करते हैं कि हमारे पास जितने फॉर एग्जांपल टॉपिक से रिलेवेंट हमारे पास जो है वो लिटरेचर रिव्यू से आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, उन सारी रिसर्चेस का या जो इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिली हैं उन सोर्सेज को हम सिर्फ समराइज करेंगे, माना उनकी समरी बनाएंगे और वो पुट करते जाएंगे रिसर्च के पूरे उस रिव्यू में, जो लिटरेचर रिव्यू कहलाया जाता है, चैप्टर या सेक्शन। हम करेंगे ये कि हम इंटरप्रेट करेंगे उसे, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस होगी, यानी हम ये समझेंगे कि उससे लिटरेचर रिव्यू की के पढ़ने से, उस लिटरेचर रिव्यू के जो अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके बाद में हमारे पास क्या पूरा एक कंसेप्ट बनता है उस प्रॉब्लम का, रिसर्च प्रॉब्लम का, जो कि हमने अपने लिए सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स करें, या हम ये समझें कि जब हम लिटरेचर रिव्यू का कंपोनेंट कर रहे हैं या सेक्शन हम उसको बना रहे हैं, तो हमें मोटी मोटी सी वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमें पता होना चाहिए, हम किस तरह से उसको जो है वो अंडरस्टैंड करें। तो लिटरेचर रिव्यू जो है उसमें सबसे पहले ये होगा कि आप इन्यूमरेट करें। इन्यूमरेट करने का मतलब ये होता है कि आप उनको गिनते जाएं, आप उनको बनाते जाएं कि कितनी रिसर्चेस जो हैं आप उनको इन्यूमरेट किया हुआ है, कितने हैं आपने उनको गिना हुआ है, फिर आप उनको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि आपको पता
पता है कि आपने ये ली है, इन्यूमरेशन का प्रोसेस इस तरह से हुआ है, इतनी सारी रिसर्चेज आपने ली हैं, फिर आप उनको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करने के बाद में उनकी सबकी समरी बनेगी, समरी बनने के बाद में उनकी ऑब्जेक्टिव इवेलुएशन होती है। यानी एक दफा आपने रिसर्चेज ली, आपको पता हुआ आपने कितनी ली है, उसके बाद में उनको आपने डिस्क्राइब किया, अपने पास डिस्क्राइब करने के बाद में उनकी समरी आपने ओवरऑल सबकी बनाई, और उस जब आप समरी बनाएंगे तो यहाँ तक ही आपको बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगी उस टॉपिक के लिए जो कि हम सिलेक्ट किए हुए होते हैं अपने रिसर्च में। और फिर क्या होगा कि जब हम बनाएंगे तो फिर उसकी एंड में ऑब्जेक्टिव इवेलुएशन होती है, यानी ऑब्जेक्टिवली अब हम इवेलुएट करते हैं कि जो रिसर्चेज हमने सिलेक्ट की हुई हैं, जो लिटरेचर रिव्यू के उसमें समझ लीजिए ज़मन में हमने सारी रिसर्चेज शामिल की हुई हैं, तो उनकी इवेलुएशन हो कि वो किस तरह से जो है वो की गई हैं, और वो किस तरह से जो है फिर फर्दर जो 5th जो नंबर होगा उसमें हम क्लेरिफाई करेंगे उन प्रीवियस रिसर्चेस को इवेलुएशन के बाद में। इट शुड गिव अ थ्योरेटिकल बेस फॉर द रिसर्च एंड हेल्प द ऑथर और द रिसर्चर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रिसर्च। यानी जब हम अपनी रिसर्च करते हैं ना, तो उसके लिए फिर ये सारी रिसर्चेस जो हैं एक तरह से हमें बेस प्रोवाइड करेंगी, और उस बेस के ऊपर फिर फर्दर हम जो है नेचर ऑफ आवर रिसर्च जो है उसको डिफाइन करेंगे। लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस जो है वो ये है फर्दर के ये एक्नॉलेज करता है प्रीवियस रिसर्चर्स के वर्क को, एंड इन सो डूइंग अश्योर्स द रीडर दैट योर वर्क हैज बीन वेल कंसीव्ड। यानी होता क्या है कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जब हम लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर जो हम शामिल कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेज जो हैं, बहुत ज़्यादा से मतलब ये है कि जितनी दुनिया में की हुई होंगी अगर वो 1 लाख के बराबर होंगी तो वो सब शामिल करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो रिसर्चेज जो हैं आपके रिसर्च टॉपिक से किसी न किसी तरह से रिलेट करते हुए उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दें, उसी को सिर्फ जो है वो इन्यूमरेट करके, डिस्क्राइब करके, समराइज करके, ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करते हुए, और फिर जो हम रिसर्च है अपनी जो हमारी रिसर्चेज हैं उसको फिर हम क्या करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे ये जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उन सबको, और हमारे पास एक क्लेरिफिकेशन होगी। जब हमारे पास क्लेरिफिकेशन होगी ना, तो जब हम अपना रिसर्च रिव्यू का जो है वो चैप्टर पूरा बनाएंगे, लिखेंगे, तो जो रीडर्स हमारे रिसर्च को पढ़ेंगे उनको ये पता चलेगा कि ये रिसर्च जो है वो ऐसे ही नहीं की गई है, बल्कि इसके उसके बहुत ज्यादा यानी जो रिसर्चर है उसने वेल कंसीव्ड जो है वो उसका काम है, और द रीडर दैट योर वर्क हैज बीन वेल कंसीव्ड, वो यही समझेगा कि वो वेल कंसीव्ड है, बहुत बेहतरीन कंसेप्शन उसका पहले से बना हुआ है, और ये इसी तरह से सिर्फ जो है यहाँ वहाँ की चीजें लेके और उनका एक मजमुआ बना के नहीं की गई है, बल्कि ये रिसर्च जो है ये बड़ी जबरदस्त और ऑब्जेक्टिव वे में जो साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ लिटरेचर थे उनको फॉलो करते हुए और बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा लिटरेचर रिव्यू? फंक्शन मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन दोबारा बता देती हूँ कि जब हम लिटरेचर रिव्यू को राइट करते हैं, राइटिंग सेक्शन में जब हम आएंगे तो पर्पस ये होगा कि हम कन्वे करें रीडर को कि क्या नॉलेज और आइडियाज जो हैं वो हमारे टॉपिक के ऊपर हमने बनाए हैं, एंड उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। यानी हम जब कोई लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, इन राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू पर्पस इज टू कन्वे द रीडर what knowledge and ideas have been established on a topic, and what are their strengths and weaknesses. And the literature review must be defined by a guiding concept. गाइडिंग कंसेप्ट का मतलब ये है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ना, तो वो बहुत जाहिर है, मैं आपको बता रही हूँ, उसमें बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं वो शामिल की जाती हैं। अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल, तो उसकी एक लिमिट होती है कितने होने चाहिए। अगर हम एमफिल कर रहे हैं तो उसमें कितने होने चाहिए, अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें कितने होने चाहिए। कोई नंबर लिमिटेड उसका कोई रिजिड रूल तो नहीं है, लेकिन इतने होने चाहिए रिसर्च के उसमें रिव्यू में आपका इतना लिटरेचर होना चाहिए कि जिससे कि आपका टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो जाए, और हम ये भी साथ में बताते जाएं कि जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट पहले रिसर्चेस की गई हैं उनके ऊपर जो भी रिसर्चेस हुई हैं इन अ फॉर्म ऑफ लाइक डिफरेंट रिसर्च प्रोग्राम प्रोजेक्ट,
उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और हम उनको अपने इस प्रॉब्लम में जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है रिसर्च टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम, उसमें हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये जो हम रिसर्च आर्टिकल लिटरेचर रिव्यू देंगे, उसमें हम अपने जो ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं कि हमारी इस रिसर्च के करने के ये मकासद हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने पूरे करने हैं। तो फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए लिटरेचर रिव्यू जो है वो लिखा जाता है। ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट नहीं होती मटेरियल की जो हमारे पास मौजूद हो, ना ही जो है वो सेट होता है समरीज का, बल्कि हम इसमें बड़ा क्रिटिकल जो एक एनालिसिस है वो किया जाता है। एंड दिस इज द मैं आपको बताऊं कि बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर होता है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का। शदीद डिफिकल्ट तरीन जो एक चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू ही होता है। उसके बाद में सारे प्रोसेस जो है सिंपल होते हैं और फिर एंड में डिस्कशन फिर दोबारा से डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, अब हम अगर उसको, मैंने बड़ा सिंपल करके कोशिश की हुई है कि आपको बताऊं और थोड़ा सा ही बताऊं, क्योंकि ये फिर जो है जब हम रिसर्च करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में तो हम उसको कैरी करेंगे, तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस जो है टीचर्स आपको देते रहेंगे। स्टेप्स क्या होने चाहिए लिटरेचर रिव्यू के? देखिए, लिटरेचर रिव्यू का स्टेप सबसे पहला तो ये है कि आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करें। टॉपिक सिलेक्ट नहीं करेंगे तो लिटरेचर सर्च ही नहीं हो सकेगा। जाहिर है, पहले आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और फिर आपने उसको रिसर्च प्रॉब्लम जो है, यू हैव टू कन्वर्ट द रिसर्च प्रॉब्लम इन अ रिसर्च टॉपिक। जब हम उसको रिसर्च टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आ जाएगा कि अब जो है आप लिटरेचर सर्च करें। यानी जरूरी जो पहले एक फंडामेंटल स्टेप होना चाहिए वो ये है कि आपके पास टॉपिक हो। जब आपने टॉपिक सिलेक्ट किया तो ही जो है वो सर्च द लिटरेचर वाला स्टेप आएगा। जब हम लिटरेचर सर्च करेंगे तो उसके बाद में डेवलप द आर्ग्यूमेंट, हम उसे लिटरेचर रिव्यू देने के जो है वो कुछ रीजंस देंगे कि क्यों हम ये कर रहे हैं, हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं लिटरेचर रिव्यू को सर्च करने के। और फिर हम सर्वे करेंगे लिटरेचर को। सर्वे का मतलब ये है, सर्च द लिटरेचर और सर्वे द लिटरेचर में फर्क होगा। सर्च द लिटरेचर में हम बहुत ज्यादा लिटरेचर रिव्यू सर्च आउट करते हैं अपने जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट। जब हम ये सर्च कर लेंगे तो हम आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करते हैं, जस्टिफिकेशंस देते हैं और हम रीजनिंग देते हैं अपने टॉपिक के सिलेक्ट होने की और लिटरेचर को सिलेक्ट करने की, उसके सर्च करने की। और फिर हम सर्वे करेंगे लिटरेचर के, यानी कि हम बहुत ज्यादा एक मेथड ऑफ सर्वे यूज करेंगे और लिटरेचर को सर्च आउट करेंगे कि ये कौन कौन सा लिटरेचर जो है वो उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ में रिलेट करता है। और फिर क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए हम जाएंगे राइट द रिव्यू, यानी कि फिर हम फाइनली जो है उसको राइट अप के उस फॉर्म में लेके जाएंगे। सिंपल अगर हम ये आप भले स्टेप नहीं भी देखो तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी चाहिए कि हम करेंगे क्या, हमारे पास पहले टॉपिक हो, टॉपिक के ऊपर हम सर्वे ऑफ द लिटरेचर करेंगे। वो जो सर्वे होगा वो सर्वे ही होगा। जब हम लिटरेचर का सर्च करेंगे या सर्वे करेंगे तो उसके बाद में उसकी एनालिसिस होगी क्रिटिकल, और फिर हम जो है उसको राइट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको हर जो स्टेप है वो यहाँ पे कोशिश की हुई है कि बताऊं। अब चूज अ टॉपिक, यानी पहले हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे टॉपिक को और उसका मतलब ये होता है कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक बनाते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में या हाइपोथेसिस के फॉर्म में। तो जो अब मेरे पास रिसर्च क्वेश्चन हो गया, मुझे उसका आंसर चाहिए है, तो मैं क्या करूंगी, लिटरेचर रिव्यू जो है दैट शुड बी गाइडेड बाय अ सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन। यानी मेरे पास जो रिसर्च क्वेश्चन है, मेरे पास जो टॉपिक है जिसको मैंने इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बनाया हुआ है, लिटरेचर रिव्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू वो आप ऐसे समझ लीजिए, मैं ऐसे समझाऊं कि आपके पास में वो नक्शा होगा, ये ऐसा समझ लीजिए कि आप उसको देखते हुए और फर्दर जो है आगे को जाएंगे। यानी आपके पास जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, जो रिसर्च टॉपिक है, वो आपको गाइड करता होगा। वो आपके पास एक मैप होगा रिसर्च के करने के लिए कि आपको किस तरह का जो है वो लिटरेचर रिव्यू चाहिए। रिमेंबर, इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ लूजली रिलेटेड
studies in a field, but instead represents a background in research documents related to the specific research question, interpreted and analyzed by you in a scientific way. Research जो हम जो सर्वे कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ इधर उधर से स्टडीज लेके और उनको एक जगह जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन से रिलेट करते हुए देख रहे होते हैं कि क्या ये इस क्वेश्चन को, क्या ये इस रिसर्च प्रॉब्लम को, क्या ये इस रिसर्च टॉपिक को एनालाइज करने में, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प आउट कर रहा है या नहीं, और अगर करेगा तो फिर उसकी हम खुद इंटरप्रिटेशन करेंगे साइंटिफाइज्ड वे में। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आप डिसाइड करो ऑन द स्कोप ऑफ योर रिव्यू, मतलब कि आपको कितने जो है वो रिव्यू चाहिए, कितना आप स्टडीज जो है आपको देख रहे हो आपको चाहिए है, या कितना कम्प्रिहेंसिव वो चीज होगी, या कितने ईयर्स जो है वो रिसर्च जो इसके ऊपर हुई है वो उसमें शामिल करेंगे आप। देखें, बाज दफा ये होता है कि हमारे पास जो है बड़ा डिफिकल्ट सा, अगर कोई समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहने वाला कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली जो है वो नंबर को डिसाइड, स्कोप का मतलब ये है नंबर। इन अदर वर्ड्स में आपको ये बताऊं कि आपको कितना नंबर जो है स्टडीज का चाहिए होता है, हाउ मेनी स्टडीज डू यू नीड टू लुक एट, कितने आपको देखने हैं, कितना चाह रहे हो आपको उसके ऊपर रिसर्च स्टडीज हो। अगर वो एक्सप्लेनेशन हो जाती है तो आपको पता चल जाता है, आप क्योंकि रिसर्च कर रहे होते हो तो रिसर्चर को पता होता है कि मुझे कितने ईयर्स तक की स्टडीज चाहिए या मुझे कितनी स्टडीज चाहिए होती हैं, और मैं किस तरह से जो है इनको ले सकता हूँ। ये सेकंड स्टेप होगा। थर्ड ये होगा कि आपने डेटाबेस जो है उसको सिलेक्ट करना है। You will use to conduct your researches. Make a list of the database इलेक्ट्रॉनिकली जो मौजूद रिसर्चेज देने वाले, समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन सेंटर्स के तौर पे ले लीजिए जो हम सर्च करेंगे। रिमेंबर टू इंक्लूड comprehensive database such as WorldCat and dissertations and thesis if you need to। यानी हमें इंटरनेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकल उसके ऊपर जो है हमें मिल रही होती हैं बहुत ज़्यादा सर्च इंजन्स, वहाँ से लेके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उनकी भी हमारे पास जो है एक लिस्ट बनी हुई चाहिए है कि वो किस तरह से होगा, कौन कौन से हमें सर्च इंजन्स यूज़ करने हैं और किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। Conduct your researches and find the literature. Keep track of your searches. Conduct your researches and find the literature. हम क्या करेंगे इसमें मैं बता देती हूँ, rather than कि मैं ये स्टडी करके आपको बताऊं कि हम जो रिसर्चेज लेते हैं ना, उसमें ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए है, हमें अपने टाइम को सेव करने के लिए हमें सबसे पहले एक एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रिसर्चेज कह रही हूँ, अगर मैं आपको रिसर्च करवाऊं और किसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको कहूँ कि आप इस टॉपिक के ऊपर 100 एटलीस्ट रिसर्चेज जो है वो आप सिमिलर हों और वो आप जो है सर्च करें, तो ये मैंने आपको एक नंबर बता दिया कि 100 होनी चाहिए। अब ये है कि 100 जो है उनको वन बाय वन स्टडी करना, इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है और फिर ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन सब स्टडीज का एब्स्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट्स कहा जाता है समरी ऑफ द रिसर्च को। कोई भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो उसकी समरी दी जाती है कि ये समरी है इस रिसर्च की। तो वो समरीज हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा टाइम कम लगता है और हमें जल्दी से थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, और उससे क्या होगा कि हम जो अपनी रिसर्च है उसको उसमें वही चीज़ें नहीं स्टडी करेंगे कि जो कि ऑलरेडी जो है वो की गई हैं, ठीक है। और फिर 5 क्या है, अगेन रिव्यू द एब्स्ट्रैक्ट्स केयरफुली, यानी अब हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट्स आ गए हमारे पास से जो अगर हमारे पास, इसमें ये बताऊं कि अगर हम जब एब्स्ट्रैक्ट को रिव्यू करते हैं ना, तो बाद दफ़ा हमारे पास ऐसी स्टडीज आ जाती हैं जो हमें बहुत हेल्पफुल लगती हैं या हमें बहुत जो है अपने टॉपिक से रिलेट करती हुई या डिसएग्री करती हुई नज़र आती हैं, तो फिर हम उन एब्स्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे फिर उन जो लिटरेचर रिसर्चेज होती हैं उनको हम अलग कर देते हैं और उनको फिर हम ज़्यादा टाइम देके हम उन्हें स्टडी करते हैं, जिसको कहा जाए कि आप दोबारा एब्स्ट्रैक्ट्स को केयरफुली रिव्यू करो और कीप केयरफुल नोट्स
ओके, सो फिर हम क्या करेंगे? अगेन रिव्यू द एब्स्ट्रैक्ट्स केयरफुली, कीप केयरफुल नोट सो दैट यू मे ट्रैक योर थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। यानी आपका जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसको स्टडी किया हुआ है, तो फिर वो पूरा प्रोसेस जो है थॉट का वो चलता रहे, वो रुके नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर क्या होगा? मीनिंग क्या है? अब मीनिंग ये है कि लिटरेचर रिव्यू इज अ रिटन ओवरव्यू ऑफ मेजर राइटिंग्स एंड अदर सोर्सेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। जो आपका लिटरेचर रिव्यू होगा, वो जितने भी टॉपिक्स हैं, मेजर राइटिंग्स हैं और अदर सोर्सेज हैं, उनके ऊपर एक ओवरव्यू है। एंड ओके, सो आपके दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे बस 5 मिनट्स और दीजिए। द लिटरेचर रिव्यू क्या है? इट्स अ रिटन ओवरव्यू ऑफ मेजर राइटिंग्स एंड अदर सोर्सेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। लिटरेचर रिव्यू क्या करता है? वो हमें डिस्क्रिप्शन देगा, समरी देगा, इवेल्युएशन देगा हर तरह के सोर्स की। इट इज यूजुअली प्रेजेंटेड एज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ ग्रेजुएट थीसिस और डिसर्टेशन। यानी कि अगर हम डिसर्टेशन है, हमारी कोई थीसिस है, तो उनमें तो ये बहुत बड़ा अलग से एक होता है, समझ लीजिए कि उसको अलग से एक बड़ी जगह दी जाती है। अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क मी, और अगर नहीं तो फिर आई एम एंडिंग द मीटिंग because of the class of because of the timings of your other class.